Bismillahirrahmanirrahim. Should I give you the good news first or the bad news first? The bad news, before I give that, I must congratulate the organizers of this function, because we are today once more celebrating a woman who I believe is not just a constitutionalist, human rights activist, but the very epitome of revolution itself. और हम उनकी memory को आज celebrate कर रहे हैं, तो I would like to thank the organizers for giving me this opportunity first. And I'm speaking about Asma Jahangir. The good news and the bad news. The bad news is this, कि हमारे मुल्क में true parliamentary democracy ना आज तक हुई है, ना आज है. Building है हमारे पास parliament की. We have a building. We also, it is buzzing with activity. We have a lot of parliamentarians like myself and my colleagues here roaming around, looking busy. Lekin if you ask me whether there is true parliamentary democracy, the bad news is that it isn't. So ये जो topic है revival of parliamentary democracy, I think the topic is wrong. It should be how can we achieve parliamentary democracy. Revival तो होता है कि आपकी पहले हो parliamentary democracy और आप उसको लें. लेकिन the good news, next, the good news is that the ingredients for a parliamentary democracy, which I am going to describe now, उनमें सबसे बड़ा ingredient, the most important ingredient, is the will of the people. The recognition by the people that they have the power to change things. And I think जो एक achievement इस वक्त इमरान खान, who is the founding member of PTI, एक जो उनकी achievement है, बाकी आप जो मर्जी कहते रहें, debate करते रहें, but one achievement that nobody will deny, and one achievement जो इस election ने prove कर दी है, this election has proved that, is that the people have recognized that they have the power to change things through their vote. And that is the first ingredient for a successful completion of a parliamentary democracy. क्या ingredients हैं parliamentary democracy के लिए? I identify 4 things. वैसे तो बहुत बड़ी debate है, बड़ी किताबें लिखी गई हैं, बड़े लोगों ने बातें की हैं, but the key ingredients in the context of Pakistan's history, the key ingredients are fundamentally 4. 1, you need parliamentarians, not a building, you need parliamentarians. And parliamentarians मैं किनको कहता हूँ? आपने एक उर्दू का लफ्ज़ सुना होगा वकार. There's no English translation for me, but reputation is probably the nearest to वकार. Until and unless parliamentarians have established their reputation in the eyes of the public, no parliamentary democracy can exist anywhere in the world. That is the first key ingredient. Vakar of the parliamentarians themselves. Number 2 ingredient, जो equally important है, is the stakeholder, the political party itself. A political party has to be a political party. And जब मैं अभी आपको बताऊंगा, I'll be very honest with you today. Do we have a political party in existence today in Pakistan?
or are we just parties by name? Are we just parties by name? Because until and unless you have a political party in existence, parliamentary democracy is not achievable. This is the second most important ingredient. ये ज़रा गौर से सुनिएगा. दूसरा ingredient. तीसरा ingredient का मैंने पहले ही जिक्र किया. The will of the people and the recognition by the people that they have the power. The revolution जिसको आप कहते हैं, जहां लोगों को एहसास हो जाए कि ये ताकत हमारे पास है, not an elite few, not some people जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें ली हुई हैं, not some people जो बड़े well connected हैं, but truly the people have the power. जितना भी गरीब हो, जितना भी अमीर हो, हर एक की बराबरी है in terms of vote, and the vote translates. That is the third ingredient. लेकिन चौथा ingredient भी उतना ही ज़रूरी है उसके साथ ही, उसको मैं part of the third ingredient ही कहता हूँ, और वो ये है कि the will of the people is nothing without leadership. A leader has to be born, a leader has to be present for the will of the people to be translated, for the will of the people to be transferred into true parliamentary democracy. And last, जो चौथा ingredient है, जो हम सबको पता है, कुछ आप लोग youngsters हैं, उन्होंने शायद experience नहीं किया होगा, लेकिन कुछ हमारे जैसे हैं who have seen a lot of history, contemporary history themselves. The third ingredient, fourth ingredient for Pakistan is, guess what? The fourth ingredient, अगर आप history देखेंगे, are the interferences from outside parliamentary forces. And those Pakistan के context में हमारे पास history में देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, दो instances हैं, दो institutions हैं which have constantly been involved in uprooting the process towards parliamentary democracy. Number one ingredient is what we call the establishment. We've got martial laws in our history. Martial laws हमने सब experience किए हैं, जिन्होंने हमेशा जब भी हमने achieve करने की कोशिश की है, democracy derail किया गया. और दूसरा judicial interference in the context of Pakistan, और बड़े कम मुल्क में ऐसा है जहां हमने देखा historically कि जब भी एक gap आया है तो judiciary ने भी interference करना शुरू कर दिया in politics and in historically speaking in, और मैं आपको explain करूंगा जो मैं कह रहा हूं with the facts कि ये historically speaking interference हुई है in policy matters, in political matters, in matters जो कि judiciary को नहीं करने चाहिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि this is governance by judiciary. तो ये चार ingredients हैं जो कि बहुत अहम है. So let's start with the history of Pakistan. क्या हमने पहली जो issue है, पहला point जो है कि parliament का वकार, parliamentarians का role, have we achieved that? I will start very briefly and take you through Pakistan's history because that is part of the topic on this. 1947 में Government of India Act 1935 था. We did not have a constitution. So Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, उन्होंने Constituent Assembly बनाई और उनको पहले दिन एड्रेस किया और कहा कि आपका सिर्फ एक ही काम है. आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, पाकिस्तान का आइन बनाएं, मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. इट टुक देम 10 years. 10 साल तक वो डिबेट करते रहे, पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठे रहे, बड़े बड़े अच्छे लोग थे, बैठे रहे, लेकिन उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाई. क्यों नहीं बनाई आप पूछेंगे? बिकॉज ऑफ दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या था कि एज लॉन्ग एज दे वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डिड नॉट मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे वुड कंटिन्यू. जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते उस दिन उनको स्टेप डाउन करना पड़ता. तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. वो जितना देर करते कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उतनी देर तक वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे रहते.
Because of that conflict, we lost 10 years. Ultimately, कोर्ट ने आके कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं. कॉन्स्टिट्यूशन बन गई 1956 की पहली. What happened then? Then we had these musical chairs. I call it the era of musical chairs. Prime ministers kept changing. अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स आए. कोई 15 दिन लास्ट किया, कोई 2 महीने लास्ट किया, कोई 3 महीने लास्ट किया. वकार जो था, रेपुटेशन ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस kept going down. रिजल्ट क्या हुआ? मार्शल लॉ. दोसा जजमेंट भी आ गई. जजमेंट ने उसको इंडोर्स भी कर दिया. So when parliamentarians lost their reputation, the result was पाकिस्तान पहले अपने 10 साल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सका. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी, इमीडिएटली आफ्टर अ ईयर और सो उसको ख़त्म कर दिया गया. Let's fast forward to 1973. 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन बन गई. इलेक्शन हुए उसके पहले. The first elections were rigged, massively rigged. So much so that people came out in the streets. Movement हो गई, violent movement happened. And eventually the second or third martial law of Ziaul Haq came. An American communique जो ambassador ने लिखी वापस, उसने कहा not a dog barked. लोगों ने बल्कि मिठाइयां बांटी at the derailment of the parliamentary democracy, because the parliamentarians did not have a great reputation. People were not standing behind them. Then what happened? The same parliamentarians joined Ziaul Haq. उनकी reputation और खराब हो गई. Okay, let's fast forward again. Fate intervened. Ziaul Haq's plane crashed. Democracy वापस आ गई. तो parliamentarians ने क्या किया? I call it the revolving door politics. Revolving door आप लोगों को पता है क्या है? कभी आप होटल में गए हैं जिसमें एक दरवाज़ा होता है, वो गोल सा दरवाज़ा होता है. आप एक साइड से एंटर करते हैं और दूसरी साइड से लोग बाहर एग्जिट कर रहे होते हैं. रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स. रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स में क्या हुआ कि एक हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, एक थी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की. 1 साल 2 साल बेनज़ीर की हुकूमत आती थी, उसको कंप्लीटली जो PMLN की हुकूमत थी वो उसको डीरेल करने की कोशिश करती रहती थी, उसको डीरेल करती थी. थोड़ी देर बाद वो आ जाते थे वापस, फिर भी बेनज़ीर भुट्टो आ जाती थी और ये सारा मामला चलता रहा. इवेंचुअली एक दिन आया और लोग हंसते थे. आपको याद होगा डिफेक्शन क्लॉज के, वो लोगों को बंद कर दिया जाता था मरी में कि आपने वोट इस तरह करना है. पार्लियामेंटेरियंस को छंगा मांगा लेके जाया जाता था. तो पार्लियामेंटेरियंस का मजाक उड़ाना शुरू हो गए लोग. They lost more of their reputation. And then what happened? एक वक्त ऐसा आया, and this is a matter of record. मैंने नेशनल असेंबली में जाके ये चेक किया कि वाकई ये दुरुस्त बात है कि नहीं. It is a matter of record कि the fastest constitutional amendment which was passed, जो कि सिर्फ 1.5 मिनट लगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने में, 1.5 मिनट. उसमें नेशनल असेंबली ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को अमीरुल मोमिनीन बना दो. फॉरगेट अबाउट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. वो तो लकीली चूंकि डिसॉल्व हो गई नेशनल असेंबली उसके बाद और वो सेनेट में नहीं जा सका मामला, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं बनी. लेकिन इस लॉस ऑफ रेपुटेशन का क्या हुआ? लॉस ऑफ रेपुटेशन से ये हुआ कि आज भी उसके इमीडिएटली बाद मुशर्रफ साहब आ गए, मार्शल लॉ लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको इंडोर्स कर दिया उस केस को और कहा कि दिस इज द करेक्ट मार्शल लॉ. सो इन इफेक्ट इफ यू लुक एट पाकिस्तानी हिस्ट्री, why we have not been able to achieve parliamentary democracy
fault also lies with us parliamentarians. And आज भी आप देखें, पिछले 2 साल पहले, 2 साल से आप देखें, हमारा मेन काम क्या है एज पार्लियामेंटेरियंस? हमारा काम है कानून साजी करना. कानून साजी किसके लिए करना? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, आप लोगों के लिए, बेहतरी के लिए, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए. लेकिन आप देखें कि पार्लियामेंट ने पिछले 2 साल से कानून साजी किस तरह की. इट इज़ कॉल्ड बुलडोजिंग ऑफ लॉज. 1 मिनट में बिल आता है, कोई पढ़ता भी नहीं उसको, स्टैंप करते हैं और लॉ बन जाता है. लोगों का जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उस पे से वकार उतरता जा रहा है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू अचीव ट्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. माई सजेशन वुड बी, माई एम इज़, एंड दैट इज़ माई एंडेवर, और यही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम अपना पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो खुद ही अपना वकार ऊपर करें. वी हैव टू फर्स्ट improve ourselves. We have to first act like parliamentarians. Then you will respect us. Then people will respect us. And only then will we be able to achieve true parliamentary democracy. That is my first ingredient. Second point मैंने आपको बताया था, political parties की existence. मैं कई forums पे जाके बात करता हूँ, and I talk about USA की पॉलिटिक्स, आई टॉक अबाउट यूके की पॉलिटिक्स, एंड आई से कि लुक एट देयर पार्टी सिस्टम. उनके पार्टी सिस्टम में आज अगर ओबामा आता है उनकी पार्टी में, तो कल बाइडेन आ जाता है, परसों कोई और आ जाएगा, अननोन, अनरिलेटेड टू ईच अदर, ओनली राइजिंग फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स. इंग्लैंड की पार्टीज़ को देखें तो 2 पार्टीज़ हैं, या मेन पार्टीज़ जो हैं, कंजर्वेटिव और लेबर. उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं वो कोई भी बन सकता है, एनीबडी हु राइजेज फ्रॉम द रैंक्स. देयर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट डायनेस्टिक, देयर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट वन मैन शो, दे आर ट्रूली डेमोक्रेटिक इनसाइड. सो हम जब तक अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को टोटली डेमोक्रेटिक नहीं करेंगे, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी will still be a dream we will achieve. I am going to shorten this. Third point. Third point was interference by other state actors. Pakistan की history में we've all seen martial laws being imposed. Pakistan की history में we've all seen the judiciary act and endorse those cases. हमने देखा है, आप start कर लें दोसा केस से, नुसरत भुट्टो केस से, आप देख लें सारे केसेस जो उसके बाद आते रहे हैं, हमेशा जब भी मौका हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ गया. जब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आप ख़त्म करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद वो फिर दोबारा से रिवाइव किया जाता है हमारी हिस्ट्री में. उसके अलावा जब भी गैप आता है, हम देखते हैं कि जुडिशरी ऐसे केसेस, रिको डिक केस हो गया, बहुत सारे केसेस हो गए जो हमारे माजी में हैं, जहाँ जो गवर्नमेंट के मैटर्स हैं उसमें इंटरफेरेंस करती रही. दोज आर ऑल थिंग्स दैट डीरेल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट इज सॉवरन, देयर इज अ कैबिनेट, देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, द एंटायर मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज अ वॉच डॉग, जुडिशरी एक्ट्स विद इन इट्स अफेयर अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर, एंड एग्जीक्यूटिव ओनली इम्प्लीमेंट्स. दैट इज द आइडियल फॉर्मेट ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. लेकिन हमारी सारी मिक्सड अप हो जाएगी. अगर हिस्ट्री देखें, एवरीबडी इज इंटरफेयरिंग विद एवरीबडी एल्सेस बिजनेस, नॉट देयर ओन. अगर आप हिस्ट्री में देखें तो इस्टेब्लिशमेंट आके तो मार्शल लॉ लगा देती है. अगर आप देखें तो जुडिशरी आके बात करना शुरू कर दी है पॉलिसी मैटर्स की, कि आपने प्राइस शुगर की कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए. सो ऑल दीज मैटर्स नीड टू बी, every body, every institution needs to be within their sphere. Last चीज जो थी, I spoke about the will of the people and leadership. Will of the people, जिस तरह मैंने कहा, आज तक हमने पाकिस्तान में बात तो बहुत की, लेकिन will of the people actually देखी नहीं. Will of the people पहली बार मैंने एक्सपीरियंस की है अब, and that is why I said कि there is a good news. The good news is कि हम लोग
बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जवान है. दे नो द सिस्टम, दे रीड एवरीथिंग. वो एजुकेटेड through the social media network, they are as educated as anybody else. They are aware of their rights. और इस बार जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि पीटीआई एक बड़ी मकबूल पार्टी थी, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ. पीटीआई को सिंबल उसका ले लिया गया. आप सब ने वो केस देखा था, मैंने खुद ये केस किया था. पीटीआई का सिंबल ले लिया गया और उसका मकसद ये था कि लोग कंफ्यूज हो जाएं. The purpose was very simple, that people should get confused, so confused that they will not be able to vote. But you people, you said no, this right of ours cannot be taken away. We will go through this process. Without the symbol, we will still vote. और वोट किया, चुप करके किया, बर्दाश्त करके किया, वोट किया, एक्सरसाइज की अपनी पावर. मुझे याद है जब मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे फिर रहा था उस दिन, तो बच्चियां आके चुपके से जो लाइन पे खड़े थे लोग, उनको कह रही थी आपने बैंगन को देना है, बैंगन को देना है, बैंगन को देना है, बैंगन को देना है. दूसरे पोलिंग स्टेशन पे गया तो किसी ने हाथ पे बनाया हुआ था निशान, शायद करेले का या किसी का, वो कह रहे थे कि ये आपने इधर वोट देना है, इधर वोट देना है. मीनिंग देयर बाय दैट पीपल वर वेरी अवेयर. People knew कि हमें हमारा वोट क्या है. They knew their power of vote and they said कि हमने इस बार एक्सरसाइज करना ही करना है, और उन्होंने किया. And I think that is the greatest achievement of Mr. इमरान खान, कि उन्होंने लोगों की ये जो विल है जो आज तक मिस कर रही थी. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पहला मार्शल लॉ हुआ, पहला मार्शल लॉ हुआ तो लोगों ने कहा कि ना, नॉट ए डॉग बार्क्ड. दूसरा मार्शल लॉ हुआ, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी. तो पीपल हैड नो विल, दे डिडंट रियलाइज, दे डिड नॉट नो देयर पावर. उनको पता ही नहीं था कि ताकत कितनी है वोट की. अब इस इलेक्शन के बाद वो क्लियर हो गया. सो इसलिए मैं देखता हूं कि अब हमने करना क्या है. आप एक प्याले की समझे, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक मेटाफॉर. कई बार शेक्सपियर भी मेटाफॉर कहता था, मैं शेक्सपियर तो नहीं हूं, लेकिन एक मेटाफॉर मैं आपको देता हूं. एक प्याला भरा हो पानी से, बिल्कुल उसको एक कतरा और डालने की ज़रूरत हो तो फिर वो प्याले से निकल आएगा उसका जो पानी है, लेकिन प्याला खुद कतरा नहीं डाल सकता. विल ऑफ द पीपल आ गई है, प्याला भर गया है, विल ऑफ द पीपल इज देयर. अब हमें सिर्फ एक कतरे की ज़रूरत है, और कतरा एक लीडर डाल सकता है. द मोमेंट दैट हैपन्स, we will convert this into a revolution. You will convert it into a revolution. So आप अपने लिए तालियां बजाएं आज. मैं फ्यूचर बड़ा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव देख रहा हूं. पार्लियामेंटेरियंस विल लर्न हाउ टू हैंडल इट, होपफुली. हम लोग आपस में, कल भी मैंने डिबेट की सेनेट में, और मैंने कहा कि अब ये जो लड़ना है, झगड़ना है, डिबेट के ज़रिए लड़ें, झगड़ें, ये हमारा हक है, लेकिन उसको तमीज़ के दायरे में रह के लड़ें, ताकि हमारा वक़ार बेहतर हो आपकी नज़र में, आपके लिए काम करें. वो जब हम कर लेंगे, विल ऑफ द पीपल इज़ देयर, द लीडरशिप इज़ देयर, द लीडरशिप इज़ गोइंग टू कम आउट सून, बाय द वे, इंशाल्लाह. एंड एज सून एज द लीडरशिप कम्स आउट, as soon as the leadership comes out, we will achieve our revolution and true parliamentary democracy. Inshallah. Thank you very much.